Welcome to YouTube Education. This video is all about Economic Survey 2017 for the assessment year 2016-17. ये वीडियो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफी हेल्पफुल होगा. So please like and subscribe my channel so that you will get more videos like this. सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, this year an unusual survey happened. हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2017 दो वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया. द फर्स्ट वॉल्यूम वाज प्रेजेंटेड ऑन 31 जनवरी 2017 और जो दूसरी वॉल्यूम है वो जून में आएगी, तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2017 फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17. मूविंग नेक्स्ट वी हैव Let's start. This is the picture of our Honorable Finance Minister Shri Arun Jaitley, who presented the economic survey in the budget session of the Parliament. Moving next, we have a paragraph on your screen. This paragraph basically contains two important points from your examination point of view. मैं आपको बताऊं इस पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में काफी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट. It is the ministry's view on the annual economic development of a country. A flagship annual document of Ministry of Finance, Government of India. Economic survey reviews the developments in the Indian economy over the previous 12 months. Summarizes the performance on major development programs and highlights the policy initiatives of the government and the prospects of the economy in the short to medium term. This document is presented to both houses of the parliament during the budget session. मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा यूनियन बजट के एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि इस साल हमारा यूनियन बजट 1 फरवरी 2017 को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, एंड उसके ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया. दैट इज ऑन 31 जनवरी 2017. प्लीज नोट डाउन द डेट. मूविंग नेक्स्ट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन इज दैट इकोनॉमिक सर्वे रिव्यूज द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स. ये पिछले 12 महीने में हुई तमाम इकोनॉमिक घटनाओं का विवरण देता है. मूविंग नेक्स्ट वी हैव, this is the picture of our honorable CEA, that is Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam. Please note down the name. I repeat, Arvind Subramaniam. Moving next, we have what is economic survey. The economic survey is a document providing details of the economic performances of the country in the past 1 year. मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें पिछले 12 महीने में हुई तमाम इकोनॉमिक घटनाओं का, इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस, डेवलपमेंट्स, सबके बारे में विवरण देता है. मूविंग नेक्स्ट वी हैव, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड after the scrutiny of data supplied by Central Statistical Office of Ministry of Statistics and Program Implementation. Data can also be sought from other government agency. इकोनॉमिक सर्वे जो बनाया जाता है वो CSO द्वारा सप्लाइड डेटा पे आधारित होता है. मैं आपको बताऊं, CSO एक ऐसा संगठन है which was headquartered in Delhi and this basically supplies the data for the preparation of economic survey. डेटा का कलेक्शन अदर एजेंसीज के द्वारा भी किया जा सकता है. मूविंग नेक्स्ट वी हैव, the draft economic survey is prepared by the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry. This draft is vetoed by the Chief Economic Advisor to the government and Economic Affairs Secretary in the Finance Ministry. After the scrutiny of data supplied by CSO, उस particular survey या particular data को Chief Economic Advisor जो होते हैं, that is our Arvind Subramaniam, उसे scrutinize करते हैं, and after that it was supplied to the Union Finance Minister, that is Shri Arun Jaitley, and that Union Finance Minister gives the final approval before the economic survey is tabled in the Parliament. और उनके द्वारा final approval के बाद ही economic survey को Parliament में present किया जाता है. Moving next we have, the purpose of tabling the economic survey in Parliament is to explain the backdrop of the budget for the next 1 year. इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का जो बजट का जो पर्पस होता है वो बेसिकली बजट के बैकड्रॉप्स, पिछले एक साल में बजट के जो भी बैकड्रॉप है उनके बारे में बताने के लिए होता है. सो इसलिए इसे एक दिन पहले भी प्रेजेंट किया जाता है बजट से. नाउ मूविंग नेक्स्ट वी हैव, पार्लियामेंट इज मेड अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट बिफोर इट स्क्रूटनाइज एंड क्लियर्स द बजट. मूविंग नेक्स्ट वी हैव, एज अ प्रैक्टिस द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द बजट. मैंने आपको पहले भी बताया, ये बजट में तमाम बैकड्रॉप्स या बजट के जो भी
पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन पे चर्चा की जाती है। इस इकोनॉमिक सर्वे को हमेशा बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। Before 1964, economic survey document was circulated along with the budget paper. The first economic survey was presented in 1951 for the assessment year 1950 to 51. मैं आपको बताऊं 1964 से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट है वो बजट पेपर के साथ प्रेजेंट किया जाता था। The economic survey also spells out the economic agenda of the government of the day. मैं आपको बताऊं ये आपके MCQs या आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है and it may ask in your personal interviews round also that what is the another name of economic survey. So it is economic agenda. Please note down. Moving next we have, interestingly, words economic survey and budget are not mentioned in the constitution. To derive their article authority from Article 112 of the Constitution, which says that the President shall present their annual financial statement before Parliament. Such documents are commonly called budget, borrowing the term and tradition from Britain. मैं आपको बताऊं the two important terms in the economy or our Indian economy, that is economic survey and Union budget, both are not mentioned in the Indian Constitution. इनकी जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 112 से डिराइव की गई है, so इसे आप प्लीज नोट करें। And moving next we have, while the economic survey is not a statutory obligation of the government, budget is a constitutional foundation for the executive. Economic survey is not a secret book as most of the data are already in public domain, while the budget is a confidential document and is prepared in the utmost secrecy. मैं आपको बताऊं, this paragraph basically contain a difference between economic survey and union budget. इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट के बीच में क्या अंतर है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इस बात को दर्शाता है। मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिपरेशन के समय में बहुत सारे डेटा पहले से ही पब्लिक को पता होते हैं, बट द बजट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। इसके बारे में पहले से किसी को भी कोई नॉलेज नहीं होता। द डे इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, पीपल केम टू नो अबाउट इट। मूविंग नेक्स्ट वी हैव on the screen economic surveys key highlights 2016-17. Let's start with the discussion. The Economic Survey 2017 of India for the period 2016-17 was tabled in the Parliament on 31st January 2017. मैंने पहले भी आपको बताया, आप इसे प्लीज स्क्रीन पे से नोट कीजिए। The date when Economic Survey was presented in the Parliament, 31st January 2017. It was presented by Finance Minister Arun Jaitley before the Parliament prior to the Indian budget. The Economic Survey was prepared by Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam. Please note down this. मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया है। Here are the key points from the Economic Survey 2017 of India. Let's start. Predictions from Economic Survey 2017. Point number 1. Growth this fiscal 2016-17 to be 6.5%. The Statistic Department had earlier projected the growth rate for 2016-17 as 7.1%. मैं आपको बताऊं इस साल जो हमारी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई है वो है 6.5%, बट अर्लियर जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसने इस ग्रोथ रेट को एस्टिमेट किया था 7.1% तक। तो आप देख रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट थी वो थी 7.1%, बट जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है इस फिस्कल ईयर की, दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17, वो 6.5% है। Moving next, we have projected the economy to grow between 6.75% and 7.5% in 2017-18. यहाँ पे 2017-18 जो अपकमिंग असेसमेंट ईयर है उसके बारे में भी आपका ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया हुआ है, दैट इज इन बिटवीन 6.7% and 7.5%. प्लीज नोट डाउन दिस। मूविंग नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं आपको बताऊं IMF एक ऐसा संगठन है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने हमारी इकोनॉमिक सर्वे में भी इस साल ग्रोथ रेट एस्टिमेट की है, दैट इज 6.6% in 2016-17 and 7.2% in 2017-18. Please note down this. Moving next, we have GST. GST and other structural reforms can take the trend growth rate to 8 to 10%. मैं आपको बताऊं 1 जुलाई 2017 से GST, that is goods and service tax, is going to be implemented in Indian economy and जो हमारे growth rate को 8 to 10% तक increase कर सकता है। However, fiscal gain from GST will take time to realize. मैं आपको बताऊं GST एक स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस है जो हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा और इसका जो भी बेनिफिट है वो हम लॉन्ग रन में रियलाइज कर सकते हैं। सो अगर यहाँ GST की बात हो रही है तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस GST, जो कि जिसके GST के बारे में हम ज्यादा चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स GST के पर्पज से बता दूं। बेसिकली GST, द फुल फॉर्म ऑफ GST इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
The second most important point for GST is, please note down that it is passed by the Constitution, that is 122nd Amendment Act of the Constitution. Moving next, it was going to be implemented from 1st July 2017. Please note down the date, 1st July 2017. The fourth important point from the GST is that there are three types of GST, or you can also say three sets of GST. Please note down, first CGST, the full form Central Goods and Service Tax. Second, IGST, that is Integrated Goods and Service Tax. Third, SGST, that is State Goods and Service Tax. I repeat the three types of GST: CGST, IGST and SGST. Next important point from the GST, please note down that in GST network there is a transfer is done by GSTN. It may ask in examination that how the GST framework works. So it works in the GSTN mode, that is Goods and Service Tax Network. Moving next, there are four tax rates which are prescribed in the GST. So please आप उसे note करें, 5%, 12%, 18% and 28%. I repeat, 5%, 12%, 18% and 28%. And there are also three important persons in the GST background. So please note down their name. It may ask in MCQs and in general knowledge questions also. So please note down, first Pami Dua, second Chetan Ghate and third Ravindra Dholakia. This is all about the 6 important points from the GST जो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताया है. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव ऑन द स्क्रीन farm sector to grow at 4.1% this fiscal, up from 1.2% last year. मैं आपको बताऊं, फार्मिंग सेक्टर और फार्म सेक्टर, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कि हमारे इंडिया का बैकबोन कहा जाता है, उसकी जो ग्रोथ रेट इस साल एस्टिमेट की गई है वो है 4.1%. और पिछले साल के अगर हम उसको नजर में रखें तो ये 1.2% पिछले साल से ज्यादा बढ़ गया है, विच इज गुड फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर, ग्रोथ रेट टू बी 5.2% दिस फिस्कल फ्रॉम 7.4% ऑफ लास्ट फिस्कल. मैं आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ सेक्टर, उसकी जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई है इस साल वो है 5.2%. एंड पिछले साल इसकी जो ग्रोथ रेट थी, दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16, वो थी 7.4%. तो साफ दिख रहा है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है. और इसकी परसेंटेज प्लीज आप नोट करें, ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव specifics from economic survey 2017 inflation. मैं आपको बताऊं, in your screen there are two types of inflation given, CPI inflation and WPI inflation. So inflation की बात हो रही है तो हम inflation पे चर्चा करेंगे. Inflation is basically a situation in an economy when prices of goods and services goes high and the demands decreases. एक ऐसा सिचुएशन जब जो भी प्राइस है कमोडिटी की वो इंक्रीज कर जाती है, और आपको पता है दैट जब प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है कि डिमांड डिक्रीज करेगा. तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन द इन्फ्लेशन सिचुएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन. एंड यहाँ पे दो तरह की इन्फ्लेशन दी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. मैं आपको बताऊं, CPI inflation is a type of inflation which basically focuses on the goods and services of the consumer. And यहाँ पे जो इसकी growth rate estimate की गई है वो है average 4.9% during April-December 2016, contributed substantially to the decline in CPI inflation which reaches 3.4% of December end, which is very good for the Indian economy, क्योंकि हमारी जो inflation rate है वो हमारे अप्रैल से दिसंबर पीरियड तक के लिए 4.9% एस्टिमेट की गई थी. एंड आफ्टर दैट एट टिल दिसंबर एंड इट वाज अप टू 3.4%, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव, सो प्लीज नोट डाउन दिस परसेंटेज. Moving next, we have reversal of WPI inflation from a true of -5.1% in August 2015 to 3.4% by end of December 2016 on the back of rising international oil prices. मैं आपको बताऊं, WPI inflation is, that is wholesale price index inflation, is a type, please note down the full form, wholesale price index inflation. इसकी बारे में मैं आपको बताऊं, it is a kind of inflation which basically focuses on the entire production of economy and which directly contributed to the national level. So मैं आपको बताऊं कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो -5.1% एस्टिमेट की गई है फ्रॉम अगस्त 2015 टू 3.4% बाय एंड ऑफ दिसंबर 2016. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो इसे नोट करें. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव फिस्कल टारगेट्स.
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी व्हिच बेसिकली कंफ्यूजेस पीपल. दोज आर फिस्कल एंड फाइनेंशियल. सो फिस्कल की अगर हम बात करें तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब भी हम गवर्नमेंट से जुड़ा रेवेन्यू की बात करते हैं तो या गवर्नमेंट से जुड़े एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दैट इज फिस्कल. बट अगर हम फाइनेंशियल टर्म की बात करें तो इफ वी डायरेक्टली टॉक अबाउट द मॉनेटरी वैल्यूज, मॉनेटरी टर्म्स, तो बेसिकली वी कंसिडर्ड इट इन अ फाइनेंशियल कैटेगरी. So this is the difference between financial and fiscal. So यहाँ पे हम fiscal targets की बात कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू की. So let's start with the first point. Central government is committed to achieve its fiscal deficit target of 3.5% of GDP this year. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल अपनी जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा है वो है 3.5% इस जीडीपी में. So please note down this. Moving next, we have consolidated deficit of state has increased steadily in recent year, rising from 2.5% of GDP in 2014-15 to 3.6% of GDP in 2015-16, in part because of उदय स्कीम. मैं आपको बताऊं कि हमारा जो स्टेट का परफॉर्मेंस है वो इस साल हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाया गया कि स्टेट का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी है, बिकॉज इट इज रैपिडली इंक्रीजिंग. लाइक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2014-15 असेसमेंट ईयर में इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो 2.5% एस्टिमेट की गई. उसके बाद जब इसकी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई 2015-16 में वो 3.6% थी, जो कि काफी अच्छा है. एंड स्टेट का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उदय स्कीम. सो अगर उदय स्कीम की बात की जा रही है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ उदय स्कीम. सो प्लीज आप इसे नोट करें. This is the small and little bit information about Uday scheme. So first of all, Uday scheme full form is Ujjwal Discom Assurance Yojana. I repeat, Ujjwal Discom Assurance Yojana. This is a mission statement. Basically, this scheme is all about financial turnaround of power distribution companies. And मैं आपको बता दूं, the owner for this mission is Ministry of Power of India. It is supported by Ministry of Power. And this was established on November 2015. So please note down the date of establishment of Uday scheme, November 2015. Moving next, मैं आपको बताऊं, Uday scheme is basically a financial turnaround and revival package for electricity distribution companies of India, initiated by the government of India with the intent to find a permanent solution to the financial mess that the power distribution is in. पावर सप्लाई से रिलेटेड ये एक स्कीम है जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर को सप्लाई करने की बात की गई है, ताकि स्टेट के परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके, डेवलपमेंट लाया जा सके. मूविंग नेक्स्ट वी हैव, एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, बेसिकली दिस उदय स्कीम हैज ऑब्जेक्टिव फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल टर्नअराउंड, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करके पावर सेक्टर को ब्लूम करने की ऐसी योजना बनाई गई है इस उदय स्कीम में. मूविंग नेक्स्ट वी हैव फॉर द गवर्नमेंट एज अ होल देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द फिस्कल डेफिसिट. तो मैं आपको बता दूं, अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस साल हमारे गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट ग्रोथ रेट है वो उसमें इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि आपने पहले देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस साल की ग्रोथ रेट 3.5% एस्टिमेट की है. स्टेट का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है उदय स्कीम की वजह से. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिस्कल स्टेट टारगेट काफी इंप्रूव्ड रहा है. मूविंग नेक्स्ट वी हैव डेफिसिट्स. Current account deficit declined to about 0.3% of GDP in the first half of financial year 2017. On your screen you are seeing three types of deficit, so हम उसके बारे में बात करेंगे. So let's start with the current account deficit. मैं आपको बता दूं, current account deficit is a type of account when the value of goods and services imported is greater than the value of goods and services exported is called करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है जब वैल्यू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं. सो विच इज बेसिकली अ लॉस टू द इंडियन इकोनॉमी. तो इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट की ग्रोथ रेट एस्टिमेट की है उसमें काफी गिरावट आई है, जैसे दैट इज 0.3% ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है. Moving next, we have foreign exchange reserve are at comfortable level, having risen from around $350 billion at the end January 2016 to $360 billion at end December 2016. मैं आपको बताऊं, हमारा foreign exchange reserve जो है उसमें काफी सुधार आया है, उनमें इंक्रीजमेंट आया है. आप प्लीज नोट कीजिए, $350 billion to $360 billion. And moving next, we have the trade deficit declined by 23.5% in April-December
2016 compared to corresponding period in the previous year. मैं आपको बताऊं, trade deficit is basically a situation when or you can say trade deficit is basically a difference between import and export in goods and services of a country. जब जो भी हम import करते हैं and जो भी हम export करते हैं उसके बीच का जो difference होता है उसे हम trade deficit कहते हैं, जिसमें इस साल भारी गिरावट आई है, that is 23.5% in April-December 2016 as compared to the corresponding previous year. तो ये भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. एंड मैं आपको बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की गई थी जहां पे इंक्रीजमेंट आया है 350 बिलियन यूएस डॉलर से 360 बिलियन यूएस डॉलर. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें हम तीन तरह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड वन इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. And third one is your FII, foreign institution investment or investor. You can say foreign institution investment or investor. So मैं आपको बताऊँ, FDI is basically according to Arvind Mayaram committee, if any foreign company invest in Indian company more than 10%, then it is called foreign direct investment. जब कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो उस सिचुएशन को हम एफडीआई बोलते हैं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मूविंग नेक्स्ट, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से, बिकॉज अक्सर एफपीआई पे बात की जाती है. इफ एनी कंपनी इन्वेस्ट और फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर इंडियन कंपनी बट दे डोंट बिकम ओनर, and they become owner but the managerial rights and the managerial power are in the hand of the third party, then it is called foreign portfolio investment. मैं आपको बताऊं, जब कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को परचेज करती है या उसमें इन्वेस्ट करती है तो इससे उसे ओनरशिप तो मिल जाता है, बट द मैनेजरियल पावर जो होता है उसमें उसके जो भी अधिकार होते हैं वो अगर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में होते हैं तो उस सिचुएशन को एफपीआई बोलते हैं, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. And the third one is your FII, that is foreign institution investment or investor. तो ये जरूरत के हिसाब से हम इस डेफिनेशन को चेंज कर फुल फॉर्म को चेंज करते हैं. इन्वेस्टमेंट तब होगा जब एज पर अकॉर्डिंग टू अरविंद मायाराम कमेटी, व्हेन एनी इंडिविजुअल or foreign individual invest in Indian company less than 10%, then it is called FII, that is foreign institution investor. अगर कोई इंसान फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी में 10% से कम तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर. और सेम हम बात करें, अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है इंडियन कंपनी में 10% से कम तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट. सो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा. फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर टू थिंग्स. जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा 10% से कम तो वो इन्वेस्टर होगा, और अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडियन कंपनी में 10% से कम तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. सो ओके, सो मूविंग नेक्स्ट वी हैव government debt. Government debt to GDP in 2016 seen at 68.5%, down from 69.1% in 2015. मैं आपको बताऊं ये काफी अच्छा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की डेप्ट है या जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे वो उसमें डिक्लाइन हुआ है. दैट इज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 68.5% इस फिस्कल ईयर की, दैट इज 2016 की, जो कि अर्लियर 69.1% था. सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट on demonetization. Demonetization, everybody is familiar with the term from 8th November 2016. So मैं आपको बताऊं, demonetization का एक बेसिक मीनिंग होता है जब किसी करेंसी की वैल्यू नील कर दी जाती है, तो वैसे सिचुएशन को demonetization कहते हैं. जैसा आपने देखा 500 and 1000 के नोट्स की करेंसी को completely नील कर दिया गया, so that is called demonetized currency. So let's start with the first point discussion. Demonetization to affect growth rate by 0.25 to 0.5%, but to have long term benefit. मैं आपको बता दूं up to 0.25 to 0.5% demonetization का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है. बट मैं आपको बताऊं शॉर्ट रन में इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट इन लॉन्ग रन इट हैज पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हमारा जो डिमोनेटाइजेशन का अभी सिनेरियो चल रहा है आपने पहले भी इसे देखा होगा, इकोनॉमी के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ऐसा आया है कि जो शॉर्ट रन में इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट इन लॉन्ग रन इट इज कम्प्लीटली गोइंग टू बेनिफिट अस.
और जो भी इसका इफेक्ट है वो ट्रांजिएंट हो जाएगा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। मूविंग नेक्स्ट वी हैव, प्लीज आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, मूविंग नेक्स्ट वी हैव डीमोनेटाइजेशन मे अफेक्ट सप्लाईज ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, मिल्क, पोटैटोज एंड ओनियंस। प्लीज आप इन और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट बेसिकली दीज 4 प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी हैरेस्ड मोर, सो प्लीज नोट डाउन दिस। Moving next, we have demonetization effects to return to normal as new currency come in circulation. अरविंद सुब्रमण्यम जी ने अपने पार्लियामेंट सेशन में ये कहा भी है कि जो भी डिमोनेटाइजेशन का भी नेगेटिव इम्पैक्ट चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में इकोनॉमी में, वो आने वाले समय में जब न्यूज करेंसीज कंप्लीटली सर्कुलेट कर दी जाएंगी इकोनॉमी में, तो उसका जो भी इफेक्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा और इतनी जितनी परेशानी आज के डेट में पीपल को फेस करनी पड़ रही है उसमें काफी गिरावट आएगी। मूविंग नेक्स्ट वी हैव on UBI. The first point, Universal Basic Income. The full form of UBI is Universal Basic Income. Proposal a powerful idea but not ready for implementation. मैं आपको बता दूं, UBI पे चर्चा करने से पहले हम UBI के कुछ important key points को जानेंगे कि आखिर UBI है क्या। So UBI is basically a poverty elimination program or you can say scheme. Okay, so मैं आपको बता दूं, this UBI has both positive and negative impact on the Indian economy. Positive impact ये है कि ये एक motivational scheme है जो कि poverty को decline करेगी, people के गरीब लोग जो below poverty line रहते हैं उनके standard of living में enhancement आएगा, but the negative impact is that it will going to put a lot of pressure on the government expenditure because इस particular scheme में ऐसी बात कही गई है कि हर month हर इंडिविजुअल के अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे वो अपना निर्वाह कर सके, अपने बेसिक एमिनिटीज को, बेसिक यूज नीड को पूरा कर सके। सो दिस बेसिकली गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, सो दिस इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। एंड जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है यूबीआई के पर्पज से मैं आपको बता दूं कि जब पर्टिकुलर किसी इंसान के, गरीब इंसान के अकाउंट में हर महीने एक फिक्स अमाउंट जाएगा तो वो जॉब क्यों करना चाहेगा, तो दिस विल गोइंग टू इनडायरेक्टली अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती है उस पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूबीआई एक बैड इम्पैक्ट लाएगा। सो दैट्स व्हाई यूबीआई इज अ प्रपोजल ऑफ अ पावरफुल आइडिया बट इट इज नॉट रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको एक और यूबीआई से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, आप उसे प्लीज नोट कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस में भी और आपके इंटरव्यूज में जरूर पूछा जा सकता है। लाइक फर्स्ट, the 2 important things that will going to benefit the UBI. The one is JAM, that is Jan Dhan, Aadhaar and Mobile. This is a system that should that should provide benefit to the UBI, that is JAM, Jan Dhan, Aadhaar and Mobile. Particularly इस सिस्टम में बात की गई है कि कैश शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। जो भी जरूरतमंद है उनके अकाउंट में कैश को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाए। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वुड helped UBI to be successful is that center state negotiation on cost sharing for program। ऐसी बात कही गई है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलके जो भी खर्चा है इस स्कीम का उसे उठाना चाहिए। सो अगर ऐसा 2 चीज हम स्टार्ट करते हैं तो यूबीआई को बेसिकली बेनिफिट होगा एंड ये यूबीआई को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये ऐसा अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा भी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। यूबीआई डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इसे हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये जो यूबीआई है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे 4 to 5% तक कॉस्ट कर रही है। आप देख भी रहे हैं स्लाइड पे, यहाँ साफ लिखा हुआ है यूबीआई वुड कॉस्ट बिटवीन 4% एंड 5% ऑफ जीडीपी। पर कब, जब हम टॉप 25% के जो पीपल हैं, जो भी हाई इनकम पीपल हैं, उनको इस स्कीम से एलिमिनेट कर देते हैं, तब ये हमारे जीडीपी पे 4% to 5% तक कॉस्ट करेगा। पर अगर हम उन टॉप 25% हाई इनकम अर्नर्स ग्रुप को भी इंडल्ज करते हैं तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी पे और जीडीपी पे 10% तक कॉस्ट कर सकता है, तो विच इज नॉट गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और पहले से ही डिफेंस का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट को उठाने पड़ रहे हैं। दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई द यूबीआई इज नॉट रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और मैं आपको बता दूं, दिस यूबीआई हैज बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के आइडियाज पे बेस्ड है। प्लीज आप इन्हें नोट कीजिए। द 1 यूनिवर्सैलिटी, second unconditionality and third is agency। I repeat, universality, unconditionality and agency। So basically मैंने आपको एक रीजन बता दिया कि why the UBI is ready for the idea and talk but not ready for the implementation।
Moving next point, that is UBI, an alternative to plethora of the state subsidies for the poverty alleviation. मैंने आपको बताया ये एक ऐसी स्कीम है जो गरीबी हटाने के लिए बनाई गई है. एंड थर्ड वन इज दैट UBI would cost 4 to 5% of GDP. मैंने ये भी आपको बताया कि UBI हमारे GDP पे राइट नाउ 4 to 5% तक कंट्रीब्यूट करता है, बट अगर हम उसमें टॉप 25% हाई इनकम पीपल को हटाते हैं तब, एंड अगर हम उनको भी इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे GDP पे 10% तक कॉस्ट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा है. इसलिए ये पावरफुल आइडिया है जिस पे बात की जा सकती है. अरविंद सुब्रमण्यम जी ने आज पार्लियामेंट में कहा भी कि इस पे बात किया जा सकता है, बट हम इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तैयार नहीं है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव करंट प्रॉब्लम्स. इस इकोनॉमिक सर्वे में जो करंट प्रॉब्लम बताई गई है वो आपके स्क्रीन पे है. सो लेट्स स्टार्ट. हाइलाइट्स डिफिकल्टीज इन प्राइवेटाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस. सबसे पहली परेशानी जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में आ रही है वो है पब्लिक इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने की. तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेटाइजेशन इज बेसिकली अ सिचुएशन जहां पे पब्लिक इंटरप्राइजेस जो भी हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं या उसको रन किया जाता है, उसे प्राइवेटाइज करना. दैट इज उन्हें उनकी जो लिबरलाइजेशन है उसको उसको रिड्यूस करना और उसे प्राइवेटाइज करना, जो कि एक जैसे प्राइवेटाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा, दैट व्हेन एन कंपनी और व्हेन एन इंस्टीट्यूशन इज रन बाय एन इंडिविजुअल, फुल ओनरशिप इज इन हैंड, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. सो यहाँ पे यही बात, ये एक हाईलाइट डिफिकल्टी है जो कि अभी करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा चर्चित भी है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव लिस्ट चैलेंजेस दैट माइट इम्पेड कंट्रीज प्रोग्रेस. फर्स्ट वन इज एम्बिवेलेंस अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर. हमारे इकोनॉमिक सर्वे में एम्बिवेलेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिंग आइडियाज, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, की दो लोगों की सोच जब नहीं मिलती. उसी तरह यहाँ पे दो चीजें हैं जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं. फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर्टी राइट एंड सेकंड वन इज योर प्राइवेट सेक्टर. सो प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्राइवेट सेक्टर की जो भी अपोजिंग आइडियाज इंडियन इकोनॉमी में अभी करंट सिनेरियो में दिख रहे हैं, ये हमारा करंट प्रॉब्लम है जिसपे बात की जा रही है, जिसमें सुधार लाने की भी बात की जा रही है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव डिफिशियंसीज इन द स्टेट कैपेसिटी इन डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज. हमने अर्लियर बात की थी कि स्टेट हैज अ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंसेज इन द GDP, बट स्टेट की जो अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है कि एसेंशियल सर्विसेज जो भी है, लाइक हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज, बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो ये सप्लाई करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है. So this is the second current problem for the Indian economy, which was talked in the survey also. Moving next, we have inefficient redistribution. Inefficient redistribution की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, इनकम एंड वेल्थ, जो भी हाई क्लास पीपल, मिडिल क्लास, लो क्लास, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिच एंड पुअर के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. जो भी हमारे रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं या जो जनरल लोग या SC ST या जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, वो रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है वो इनएफिशिएंट हो गया है, एंड विच बेसिकली क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव सजेशंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2017. इस साल इकोनॉमिक सर्वे का जो सजेशंस है जो इस साल पार्लियामेंट में डिस्कस भी किया गया, वो है फर्स्ट पॉइंट, सजेस्ट द नीड टू फर्दर प्राइवेटाइज द सिविल एविएशन, बैंकिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर. अर्लियर मैंने आपको कहा था ये प्रॉब्लम है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करना, तो यहाँ पे वही सजेशन भी दिया गया है कि टू प्राइवेटाइज द सिविल एविएशन, बैंकिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव प्रिस्क्राइब कट इन इंडिविजुअल IT रेट्स, रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटी. ऐसा कहा भी है कि जब यूनियन बजट आएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा चर्चा की गई कि जब यूनियन बजट आएगा तो उसमें इंडिविजुअल के भी जो भी इनकम टैक्स रेट्स हैं उनमें गिरावट आ सकती है, रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटीज के भी दाम घट सकते हैं. Moving next, we have tax administration to be improved to reduce discretion and improve accountability. जो भी हमारा टैक्स का बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो भी टैक्स का सिनेरियो है, लाइक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि कम्प्लीटली हटने जा रहा है 1 जुलाई 2017 से जब GST लाया जा रहा है. सो ऐसे जो भी टैक्स में रिफॉर्म्स लाने चाहिए. Moving next, we have suggest gradual winding of income tax net by encompassing all high income earners. ऐसी भी बात की गई है कि जो भी हाई इनकम अर्नर्स पीपल है उनको बेसिक स्कीम्स या इनकम टैक्स के जो भी चार्ज है उनमें मोर मॉडिफिकेशन लानी चाहिए. लाइक UBI क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करने का भी एक बेसिक रीजन यही है क्योंकि ये हमारे GDP पे ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, तो हाई इनकम पीपल को उस पर्टिकुलर स्कीम से हटाया जाए. उसी तरह यहाँ भी बात की गई है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव एफर्ट्स टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन डिस्क्लोज एंड अनडिस्क्लोज वेल्थ शुड नॉट लीड टू टैक्स हैरेसमेंट. जो भी डिस्क्लोज या जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो पीपल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. फर्स्ट, who pay taxes on the disclosed income, and other one are those who pay tax on undisclosed income. So जो भी undisclosed income पे टैक्स पे करते हैं उसे टैक्स हैरेसमेंट के कैटेगरी में लाना चाहिए.
Moving next, we have suggest setting up public sector asset rehabilitation. Please note down this full form. PSARA, Public Sector Asset Rehabilitation Agency. This is very important to take charge of bad loans. ये गवर्नमेंट के डेप्ट को टारगेट करेगा, उसे लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा. ये एक ऐसा एजेंसी है, सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए. पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव outlooks for 2016-17 according to Economic Survey 2017. Effects of demonetization. Point number 1, an aggregate demand shock due to reduction in supply of money. मैंने पहले भी आपको बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन है हमारे शॉर्ट रन में काफी हार्मफुल है, और ये हमारे जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें काफी रिडक्शन भी आया है डिमोनेटाइजेशन की वजह से. मूविंग नेक्स्ट, और डिमांड पे काफी प्रेशर भी पड़ा है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव अनसर्टेनिटी शॉक ड्यू टू अनसर्टेनिटी ओवर द मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ द कैश शॉर्टेज एंड द पॉलिसी रिस्पॉन्सेज. मैं आपको बता दूं, कैश की जो शॉर्टेज डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुई है, उसके वजह से जो भी इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज है उस पर भी भारी समस्या क्रिएट हुई है. सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड मोस्ट इफेक्ट और आउटलुक फॉर द 2017 इकोनॉमिक सर्वे. एंड नाउ वी हैव इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017 व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट कैश डिक्लाइन बाय 9.4%. हमारा जो कैश है वो 9.4% से डिक्लाइन कर गया. प्लीज आप इस परसेंटेज को नोट कीजिए. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज बाय 43%. हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो 43% इंक्रीज कर गया, विच इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. मैं आपको बता दूं, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 तक मोदी जी ने कहा भी था कि आप अपने कैश को बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, 500 and 1000 नोट्स, जो कि अब लीगल नहीं रहे हैं. सो इस वजह से डिमांड डिपॉजिट काफी इंक्रीज हुआ, दैट इज अप टू 43%. Moving next, we have growth in the sum of the two by 11.3%. एंड जो कैश एंड डिमांड डिपॉजिट की सम टोटल ग्रोथ है वो 11.3% एस्टिमेट की गई. प्लीज आप इसे नोट कीजिए. Moving next, we have corresponding figures for the previous year. एंड सेम इन तीन चीजों की जो प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग है वो है कैश डिक्लाइन बाय 12.5%, डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज बाय 10.5%. आप देख रहे हैं पिछले साल डिमांड डिपॉजिट की परसेंटेज जो है इंक्रीजमेंट की वो कितनी कम है, 10.5%, और इस साल वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से 43% हो गई है. एंड नाउ इट इज थर्ड ग्रोथ, सम टोटल ग्रोथ इज 11.7% रिस्पेक्टिवली. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव as of January 15, 2017, aggregate sowing of the two major rabi crops, wheat and pulses, exceeded last year planting by 7.1% and 10.7% respectively. मैं आपको बता दूं, दाल के जो दाम हैं वो बेसिकली बढ़ रहे हैं, और इस वजह से जो हमारी फूड इन्फ्लेशन को काफी बढ़ावा मिल रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो इस साल 2% जो आपके स्क्रीन पे नोट कीजिए, 7.1% एंड 10.7%, जो बेसिकली इस साल इकोनॉमिक सर्वे में कहा भी गया है कि टू मेजर रबी क्रॉप्स व्हीट एंड पल्सेस के जो दाम बढ़ रहे हैं ये फूड इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी इन 6.34 to 7.5% रेंज इन फाइनेंशियल ईयर 2018. मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2018 की भी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है, सो प्लीज आप इसे नोट कीजिए. एंड नाउ वी हैव फिस्कल विंड फ्लो लाइकली फ्रॉम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लाइक लो ऑयल प्राइसेस. मैं आपको बताऊं, जो फिस्कल विंडफॉल है वो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वजह से है, और इसके बारे में हम बात करेंगे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस बेसिकली ऐसी स्कीम है जहां पे अगर आपने अपना अभी तक ब्लैक मनी जमा नहीं किया है तो आप इस स्कीम में जमा कर सकते हैं. और ये स्कीम बेसिकली गरीब लोगों के लिए है, ताकि और जो भी ब्लैक मनी आपके पास है, आपने अभी तक उसे जमा नहीं किया, तो आप इसे इस स्कीम में ट्रांसफर कीजिए, इस स्कीम में जमा कीजिए, जिसकी वजह से न केवल गरीबों का भला भी होगा, आपको भी ब्लैक मनी से निजात मिल जाएगा. एंड मूविंग नेक्स्ट, वी हैव इंडिया टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. एंड इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि अगर हम इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं, करंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं, जो सजेशंस दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी हाइलाइट्स है, इफेक्ट्स है, उनको हम चर्चा करके उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो इंडिया जो हमारा मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है वो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट के साथ ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया जा सकता है.
सो दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड जो नेक्स्ट वॉल्यूम जून में आने वाली है उसके बारे में हम जून में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू.